Hello and welcome students. Today we are going to start with our new chapter in English, lesson number 5th. They gave us freedom. Okay, they gave us freedom. What do you mean by freedom? All of you know what is freedom, swatantrata, है ना? And who gave us? The leaders. Many leaders, they sacrificed themselves, their lives for our freedom. Okay, so some of them we are going to see in this chapter. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel is known as the Iron Man of India. सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया है, उनको ये टाइटल दिया गया है. मैच दिस लीडर्स टू द टाइटल्स दे आर पॉपुलरली नोन एज. यहाँ पर लीडर्स दिए गए हैं और नीचे उनको जो टाइटल दिए गए हैं उनके बारे में लिखा गया है, बताया गया है. नाउ यू हैव टू मैच दैम. कैन यू रिकॉग्नाइज हिम? हु इज ही? यस, ही इज अ लाला लजपत राय. हु इज ही? लाला लजपत राय. ही वॉज एंटाइटल्ड बाय द लॉयन ऑफ पंजाब. ओके, so you can write here 4 and here you can write Lala Lajpat Rai. Who is he? Yes, all of you know Chacha Nehru. Children call him Chacha Nehru. His full name is Jawaharlal Motilal Nehru. Okay, and he was known as the architect of modern India. Okay, इनको architect of modern India कहा गया है. Okay, he was first prime minister of India. Okay, who was the first prime minister of India? Pandit Jawaharlal Nehru, and he has been entitled that architect of modern India because he had laid the foundation for the growth of industrial and economical India. Okay, so he started many new industries in India. That's why he is called as the architect of India. Now you can see, yes, all of you know who is he? Mahatma Gandhi. He is called as the father of the nation. महात्मा गांधी जी को हम फादर ऑफ नेशन कहा गया है. Why is it so? Because it was he who got freedom for us. Okay, he was the person who had got the freedom for us, and he was the maker of modern India. Okay, that's why he is been entitled as a father of nation. Can you recognize her? Who is she? She is Sarojini Naidu. Okay, she is Sarojini Naidu, and she is been entitled as Nightingale of India. Okay, and she was the first female governor. Who was she? First female governor, and she was also been called as Nightingale of India और भारतीय कोकिला. भारतीय कोकिला नाम से भी इनको जाना जाता है. क्यों? Because her poems are rich in imaginary and emotions. These are the people, those have struggled, sacrificed them, and gave a new change in our country. Okay, they have made our country freedom from the Britishers. Okay, ऐसे बहुत से ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हैं. उनमें से हम लोग आज एक के बारे में देखने वाले हैं जो कि है सरदार वल्लभ भाई पटेल. टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वॉज द ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर. कैसे फ्रीडम फाइटर थे वो? ब्रेवेस्ट, इंडियाज ब्रेवेस्ट फ्रीडम फाइटर्स. वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल. What was his full name? Vallabhbhai Jawaharlal Patel was born on 31st October 1875 in the village of Nadiad in Gujarat. His parents were Jawaharlal and Ladbhai Patel. Okay, मतलब this is his father's name and this is mother's name. Okay, he had 5 brothers and a sister.
उनको 5 भाई थे और एक सिस्टर थी। His father was a farmer and believed in helping others and serving the nation. उनके पिताजी जो थे वो फादर थे और वो हर किसी की मदद करते थे और देश की सेवा करना यही उनका काम था। किसी तरह वो अपने नेशन की हेल्प करना चाहते। दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस वल्लभ भाई, वो हमेशा वल्लभ भाई को इन्फ्लुएंस किया करते थे कि हाउ ही कैन हेल्प आवर नेशन। एज अ यंग स्टूडेंट वल्लभ भाई डिड नॉट टॉलरेट एनी इनजस्ट एंड वुड स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग रॉन्ग। जब वो छोटे थे, यंग थे, कौन? वल्लभ भाई पटेल, तभी से उनको ये पसंद नहीं था। ओके, ये चीज उनको पसंद नहीं था कि किसी के भी साथ में अन्याय हो और कोई किसी के साथ में गलत और बुरा बर्ताव करे। यही उनका नेचर था। किनका? वल्लभ भाई पटेल। हिज एक्यूट सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग वुड नॉट अलाउ हिम टू एक्सेप्ट इनजस्ट टुवर्ड्स द पुअर एंड द नीडी। जरूरतमंद को और गरीब लोगों के साथ में कोई भी अन्याय, अत्याचार और किसी को भी गलत बिहेवियर, गलत तरीके से बिहेवियर देना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये उनका नेचर था, वो ये सहन नहीं कर पाते थे। तो इससे पता चलता है कि जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब वो यंग थे तभी से ही वो क्या चाहते थे, वो किसी के ऊपर भी अन्याय हुआ नहीं पसंद करते थे। ठीक है ना। हियर द मीनिंग इज गिवन, टॉलरेट टू एक्सेप्ट समथिंग दैट यू डिसलाइक, मतलब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, मानते नहीं थे, जो कि उनको पसंद नहीं था। इनजस्ट, लैक ऑफ जस्ट बिहेवियर, मतलब अच्छे बिहेवियर जो नहीं करते उसको इनजस्टिस बोलते हैं। ठीक है। इन द ईयर 1913 वल्लभ भाई एंड हिज ब्रदर विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई के 5 ब्रदर्स थे, तो उनमें से एक ब्रदर विठल भाई पटेल स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ। ओके, लॉ मतलब आपको सबको पता होगा, टू बिकम एन एडवोकेट, वकील बनने के लिए जो पढ़ाई की जाती है उसको हम लोग लॉ की पढ़ाई कहते हैं। तो वो कहाँ पर करते थे? अपने भाई के साथ में गोधरा। ओके, दे वर पॉपुलरली नोन एज द पटेल ब्रदर्स। लोग उनको किस नाम से ज्यादातर पहचानते थे और जाने जाते थे? वो लोग पटेल ब्रदर्स कहा जाता था उनको, सब लोग उनको पटेल ब्रदर्स के नाम से जाना करते थे। आफ्टर सम टाइम वल्लभ भाई वेंट टू इंग्लैंड, कुछ समय के बाद वल्लभ भाई कहाँ गए थे? टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की स्टडीज के लिए। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया ही प्रैक्टिस लॉ टू सेव द पुअर एंड इनोसेंट who had been wronged by the unfair British rule in India। उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल था हमारे भारत देश में, उनके तरफ से जो गलत बिहेवियर हुआ करता था पुअर और इनोसेंट निर्दोष लोगों के साथ में, उसके खिलाफ जब वो लॉ पढ़े हुए थे, इसलिए वो कानूनी तौर पर उन लोगों के लिए लड़ते थे। क्यों? तो उनको पहले से ही उनके साथ में अन्याय किया हुआ पसंद नहीं था। इन 1916 वल्लभ भाई मेट महात्मा गांधी एंड सुन बिकेम द ट्रस्टेड लिeutenant। ओके, 1916 में वल्लभ भाई इनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी के साथ हुई और जल्द ही वो उनके क्या बन गए? फॉलोवर बन गए। मतलब महात्मा गांधी जी के साथ वो काम करने लगे। क्यों? तो दोनों का भी एम यही था कि वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़े। In 1928, he brought together the farmers of Bardoli to protest against the steep rise in land taxes। उस टाइम पर ब्रिटिश लोग हमारे इंडियन फार्मर्स से लैंड का टैक्स वसूल किया करते थे। ओके, तो 1928 में बहुत सारे फार्मर्स को एकत्रित करके, बरडोली का ये एक जगह का नाम है, उन्होंने ये जो अचानक राइज किया था, उन्होंने लैंड टैक्स के अंदर बढ़ोतरी की थी, मतलब उन्होंने पैसे बढ़ा दिए थे, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, प्रोटेस्ट किया था। मतलब ये चीज हमें हम लोग नहीं मानेंगे।
देयर स्ट्रगल वॉज सक्सेसफुल, और ये करने में वो कामयाब भी हो गए। एंड एन इंक्वायरी कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और एक इंक्वायरी कमिटी ये अपॉइंट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, विच रिड्यूस द टैक्स हाइक, जो इनकी कोशिश की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमिटी, इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट की, और उन्होंने ये रिड्यूस करने पे उनको क्या बोलते हैं, करना ही पड़ा। टैक्स हाइक जो है, अचानक टैक्स जो बढ़ाया गया था लैंड के ऊपर, उसको उनको रिड्यूस करना पड़ा, कम करना पड़ा। इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल दैट वल्लभ भाई अर्न द टाइटल ऑफ सरदार, और यही वो समय था जब वो इसमें कामयाब हुए तो लोगों ने उनको सरदार नाम की पदवी दी। ओके, उसके पहले ही वॉज नोन एज ओनली वल्लभ भाई पटेल। जब उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उनका जो टैक्स है जो राइज हो गया था उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन उठाया और कानूनी तौर पर वो लड़े, तभी जाकर वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाए, और इसीलिए उनका नाम, लोगों ने उनको एक टाइटल दिया, और वो टाइटल था सरदार। सरदार पटेल gathered and organized people into one unit to fight against the British Raj। सरदार पटेल ये एक साथ जमा हुए, ऑर्गेनाइज किया उन्होंने पीपल को, और एक यूनिट बनाकर वो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने के लिए उनको तैयार किया। He was popular for his organizational and management skill and his efficiency in handling the toughest situation। वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा माने गए थे, पॉपुलर किस चीज़ के लिए थे? फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजमेंट स्किल। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे किसी भी काम को और उसको मैनेज करते थे, वो जो उनके अंदर स्किल्स थे, ओके, कला थी, उसके लिए वो बहुत पॉपुलर थे, मतलब फेमस थे। एंड हिज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब बिना गलती से काम करना, उसको बोलते हैं एफिशिएंट होना। इन हैंडलिंग द टफेस्ट सिचुएशन, कितनी भी टफ सिचुएशन हो। सरदार पटेल बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमें स्वतंत्रता मिली, स्वराज मतलब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ये फर्स्ट होम मिनिस्टर और उसके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वो बने। विथ हिज पेशेंस, फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन। ओके, उनके पेशेंस, पेशेंस मतलब बहुत ही शांति से निर्णय लेने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं पेशेंस। ओके, संयमता, पेशेंस मतलब संयमता। और फोरसाइट, फोरसाइट मतलब एबिलिटी टू गेस व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब वो पहले ही ये चीज़ का अंदाजा लगा लेते थे और अचूक अंदाजा लगाते थे कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उसी हिसाब से वो पहले से तैयारी रखते थे। डिटर्मिनेशन, ही इंटीग्रेटेड द प्रिंसली स्टेट्स। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे इंडिया में फ्रीडम मिलने के बाद में भी बहुत सी जगह पर राजा महाराजाओं के स्टेट अलग थे, वो अभी तक हमारे इंडिया के साथ में मिलकर नहीं रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, उनको उन्होंने इंडियन यूनियन में फॉर्म कर लिया, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड फॉर दिस ही इज राइटली कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया। इसी चीज के लिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया भी कहा गया। गांधीजी's tragic death on 30 January 1948 had a huge impact on सरदार पटेल। गांधी जी की जब डेथ हो गई 30 जनवरी 1948 में, इसका बहुत बड़ा असर सरदार वल्लभ भाई पटेल इन पर हुआ, क्योंकि वो उनके फॉलोअर थे। The grief and his round-the-clock effort to deal with the problems of the young and newly independent India। और उसके बाद वो धीरे धीरे जो उन्होंने सोच के रखा हुआ था, जो उनकी जो एम था, ग्रीफ था, क्रॉक ऑफ, पूरे दिन रात वो अपने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुट गए। टूक अ टोल ऑन हिज हेल्थ, लेकिन इसका बहुत बुरा असर हो गया, डैमेज हो गई उनकी हेल्थ, क्योंकि अब पूरी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी सरदार वल्लभ भाई पटेल इन पर आ गई थी, और इसलिए उसके इस जो दिन रात की मेहनत की वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर उसका बुरा असर हो गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 15 December 1950 सरदार वल्लभ भाई पटेल
breathed his last at Birla House in Bombay. मुंबई में बिरला हाउस में उन्होंने आखिरी सांस ली, मतलब वो गुजर गए कभी 15 दिसंबर 1950 को. An ocean of admirers and followers came to pay their last respect and show their gratitude towards the departed leader. उस समय जैसे एक समंदर बोलते हैं ना, ओशियन, ओके, ऐसे लोगों का जो उनके फॉलोअर्स थे, एडमायर्स थे उनका झुंड उनको ग्रेटिट्यूड देने के लिए वहाँ पर डिपार्चर के वक्त, मतलब उनको विदाई देने के लिए वहाँ पर आए थे. सरदार पटेल हैज़ लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन इंडियन हिस्ट्री. सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम एक परमानेंट मार्क है हमारे इंडियन हिस्ट्री में. हिज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्पायर ईच एंड एवरी इंडियन हार्ट. उनका जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये हमेशा हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है हर इंडियन हार्ट को. इसलिए ऐसे महान व्यक्ति को हमारा सलाम. और हमें ऐसे लोगों से इंस्पायर होना चाहिए, और हमारा जो फ्रीडम है, हमें जो इतनी तकलीफ से मिला हुआ जो फ्रीडम है, उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओके, एंड वी शुड वर्क फॉर द नेशन. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट part of the same lesson I will continue in our next video.